Welcome to the first episode of the Industry Insider of the NISP Council. We have with us a very special guest today, Mr. Yash Gowde, the founder of Elite NFT. We'll be speaking with him on his startup journey, his current company, and his entire journey from his college life and school life towards how he built his startup. And also, we will be learning about NFTs from scratch. So, if you all want more information on NFTs, this is the place to be. Beginning with our first podcast to Mr. Yash Gowde. Our first question, obviously the generic one. Introduce yourself. Tell us something about you. Tell us your background. Yeah, sure. Hi, I'm Yash. I've been into NFTs and startup for last 2-3 years now, and yeah, I've been killing it in this space. Apart from that, yeah, I'm still graduating. So I just passed. अभी तक पास नहीं किया, अभी सिर्फ दिया है एग्जाम्स. So hopefully I will pass my graduation now. So yeah, that's all. So you said you're graduating now and like अभी तक एग्जाम दिया नहीं है. How hectic is it? And graduation से honestly कुछ फ़र्क भी पड़ता है अभी आपको? To be honest, like why I did degree is मेरे माँ ने कहा था कि देख मैंने मास्टर्स किया है तो एटलीस्ट बैचलर्स तो करके ला. So that was the reason of me doing a degree. Apart from that, like I really was thinking of dropping out after my 5th semester, but the professors and HOD of my college were like, कर ले यार, मतलब अभी थोड़ा सा बचा. It is just a semester left, and from like I was pretty lucky that I had nice teachers there who supported. Like हाँ ठीक है मत आ तू college, तू सिर्फ assignment दे, that's all. So I never went to the college as well. So गिन के I went 5 times in last semester just for submission of assignments. That too I had 7 subjects though, but I went 5 times. So yeah, that was chill. But pressure बोलोगे तो yeah, exams के time आता है. Like March में exams था अभी. I had to like stop working क्योंकि पूरा साल तो we don't study. That's given for everyone, right? That's given for all colleges, I believe. Yeah, true. Like we don't study, be it engineering or be it arts. So I'm studying mass media just to make it. Yeah. So for me, March was a pretty hectic and very loss-making month. By that I mean like I thought I have a team of 10, and if I leave most of the things up to them, it will work smoothly, but it wasn't the case. Me being the face of the company, me being the person who is in charge, if you are not there and even if you are delegating the task, that won't work. So it resulted in we losing clients a lot, like a lot. We literally lost around 90% of the revenue that we were making. So probably it was my fault that मैंने सब कुछ बोला कि मैं अभी काम नहीं करूँगा 1 महीना, तुम लोग संभाल लेना. But they were not well equipped or they were not well trained by me as well. So yeah, that was hectic. But apart from that, if you ask me कि startup करते करते अगर तू college करना है, so I will just say कि नहीं यार कर लो, कुछ नहीं होता. Just find teachers. Just given that teachers should be supportive. अगर teacher बोल रहे कि नहीं हर जा तो नहीं कर पाओगे. So yeah. Regarding your entire leaders delegating and the entire part where you said that you won't work. So I just like to add that हमारा भी काफ़ी experience हो गया. Like in the being in the committee, we have probably made the same mistake and we know exactly what you're hinting at because we've been through it as well. Before we get to your entire startup journey and NFTs, I just like to ask you about your hobbies and interests, if you would like to share. कुछ नहीं है भाई जो करता. To be honest, see, I don't listen to music. Okay, like I'm pretty ऐसा बोरिंग इंसान है मैं. ठीक है, आई डोंट लिसन टू म्यूज़िक, आई डोंट वॉच मूवीज़. सीरीज़ ऐसा 11वीं-12वीं में फ्रेंड्स और बिग बैंग थ्योरी एक बार देख लिया, उसके बाद कभी देखा नहीं है. सो हॉबी यही है कि मेरे को ना ऐसा लोगों से सब बात करके, लोगों को ऐसा साथ में रख कर आगे बढ़ने में बहुत मज़ा आता है. सो दैट्स माई लाइक इफ़ आई वर्क फॉर 16 hours, इट्स नॉट लाइक इट इज़ हेक्टिक, लाइक कि भाई अनहेल्दी है ये, ठीक है, पर मेरे को मज़ा आता है वो करने में. So that's the hobby that I had. Apart from that, I used to play cricket बहुत अच्छे से, पर अभी 3 साल में I never did. So
वो नहीं है कुछ हॉबी. Your work is your hobby basically. हाँ मतलब वर्क ही पसंद है करना. ऐसा नहीं है कि बोरिंग है. घूमना पसंद है. लाइक आई वेंट ऑन अ सोलो ट्रिप टू गोवा. That was the full achievement of me being 19 and going on a solo trip to Goa. And I will just tell you a story, okay, what happened. So I was pretty tensed at that time कि यार क्या हो रहा है लाइफ में, सब ऐसा हुंगड़ू पुंगड़ू हो रहा था, right? So I was like कि क्या करें. मैंने आज सोचा कि मेरे को गोवा जाना है. आज रात को गाड़ी में बैठ के गोवा. Well, that is a success story pretty much everyone dreams of, isn't it? I believe. So talking of success stories, like ये स्टार्टअप का वेंचर कैसे था? As in, एक दिन अचानक ऐसे लगा कि करना है या what happened? So I have been like see as I told you I have been like if you ask me about the journey ऐसा बचपन से, ठीक है, मतलब I want to start there क्योंकि फिर you will get to know कि startup क्यों, why was that the scene. So both my parents are working, right? I used to stay in babysitting for like most of the time. Okay, so my mom used to go out at 8, my father used to go out at 7. Okay, they used to I used to come back at 6 p.m. and my papa used to come back at 8. Okay, living in Titwala it's like 4-5 घंटा तो traveling में ही जाता है, right? So me being अकेला there, there was no one to talk to of my age there, right? What happens is usually you talk to parents, usually you share your things. My parents love me and they did take care of me, but ऐसा था ना कि there was nobody. वो 24 घंटे में बस मेरे साथ 3 घंटे साथ थे. Rest of the time I was on my own. तो मेरे को आदत लगी कि खुद से बात कर. तेरे को कोई प्रॉब्लम है ना? I never shared. Like if you see me now, I am pretty extroverted. Like we talked पहले भी. But inside अगर तू मेरे को लाइफ के बारे में पूछेगा, I won't share my life at all. ऐसा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं खुद से ही बात करके सॉर्ट कर लूँगा. That was the thing. Now what happened? This shaped me into being a person जो एक चीज़ को लेके 4 बार वही चीज़ सोच के उसका बेस्ट, मतलब एक चीज़ है. You can call it overthinking as well. I don't call it overthinking. I feel that's what my problem solving is. कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसमें 1 2 3 4 ऑप्शंस है, इसमें से मैं क्या करूँगा जिससे मेरा बेस्ट होगा, राइट? एंड देन स्लो एंड स्टडीली व्हेन आई ग्रू अप, अभी ये मैं 3rd 4th 5th से आके जब भी मैं 9th में आया, ठीक है, आई सॉ अ प्रॉब्लम विच वॉज कि है ना भाई काम वाली बाई नहीं मिलती यार. ठीक है, दिस वॉज द प्रॉब्लम आई सॉ. कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, अर्बन क्लैप मतलब ये सब हाउस हेल्प का क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैं बोला मैं बनाऊंगा अमेजॉन फॉर काम वाली बाई, लोग काम वाली बाई खरीदेंगे. As wrong as that sounds, it's a very good concept, you know. I mean काम वाली बाई नहीं, मतलब सर्विसेज खरीदेंगे. Okay. I think the audience understood that. I hope they understood that. Yeah. So that was the thing I wanted to build. Now कोडिंग तो सी नहीं आता था मेरे को, ठीक है, एंड कोई इच्छा भी नहीं था कोडिंग सीखने का. धंधा बनाने में मज़ा है, ठीक है, मतलब फॉर मी. किसी को कोडिंग में आ सकता है, मेरे को नहीं आता. सो आई वाज लाइक कि क्या है, मेरे को बनाना है. मैंने मम्मी को बताया, मतलब कि भाई ऐसा बनाने का है, मस्त आइडिया है, बनाओ. तो मैंने बोला ठीक है. तो मैंने ऐसा रिसर्च शुरू किया तो लगा कि इसको बनाने के लिए ना ऐसा एजेंसीज होता है जो ऐसा बना के देता है. तुम उसको आइडिया दो, वो तुमको बना के देगा. मैंने ऐसा सबको कॉल वॉल किया, हाय आई एम 14-year-old किड फ्रॉम मुंबई, आई वांट टू क्रिएट दिस. दे वर लाइक आपके मम्मा को कॉल दो, मेरे से बात करो. सो आई वाज लाइक हाउ मच विल इट कॉस्ट एक्सेप्ट. पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है खिशे में मेरे, मतलब ऐसा मेरे. एंड आई नेवर यूज्ड टू गेट पॉकेट मनी. दैट वाज द थिंग कि तेरे को जो चाहिए मांग ले, हम ला के दे देंगे. यू गेट 0 पॉकेट मनी. सो आई वाज लाइक कितना ही खर्चा आएगा, मेरे को लगा 10-20 हज़ार में हो जाएगा, ठीक है. आई गॉट कोट ऑफ सम 4-5 लाख रुपीज़ जस्ट टू क्रिएट एन MVP. तो तभी MVP वगैरह कुछ पता नहीं था, बट जस्ट टू क्रिएट अ वर्किंग वर्जन आई वुड से, ठीक है. आई वाज लाइक नहीं भाई इतना तो नहीं है, ठीक है. मैंने घर पे बताया एंड घर पे वाज लाइक नाही तुझ्या हॉबीसाठी आम्ही इतके पैसे नाही देते. सो दॅट वॉज द थिंग. सो माय मा वॉज लाइक कि नहीं 10वीं कर ले फिर देखेंगे. तब तक टाइम निकल गया, तब तक बहुत सारे स्टार्टअप्स ने वो कर लिया. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कुछ किया ऐसा करके, बट या दैट देयर वॉज देन अर्बन क्लैब, देयर वॉज देन
many startups, right? So that's how the entrepreneurial thing started कि मेरे को एक प्रॉब्लम दिखा जिसको मेरे 4 सॉल्यूशंस निकाले थे कि एक तो है कि वो जो बाई आ रही है उसको ही पूछो ना कि आप क्यों नहीं आते यार टाइम पे, आ जाओ ना। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, ये उससे सॉल्व नहीं होगा, दैट ह्यूमन वाला चीज़ है उसमें नहीं होगा, यू हैव टू मेक समथिंग जिस पे, सो दैट वाज वेयर वी स्टार्टेड। बट देन 10th 11th 12th आई डिड नथिंग टू बी ऑनेस्ट on the entrepreneurial part, but I wanted to make money. Now why was because see, मेरे मम्मा पापा ने सब दिया मेरे को, ठीक है, बट मेरे को हर चीज़ के लिए पूछना पड़ता था। Even to buy a packet of Lays, I had to ask मेरे को 5 रुपये चाहिए, and whenever you ask 5 रुपये चाहिए, they will ask you कहाँ पाहिजे, right? And that's genuinely what they will ask. So I was like, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को Lays खरीदना है खुद के दम पे। दैट वॉज द थिंग कि मेरे को माँ से नहीं पूछना पड़े, एंड आई नेवर बॉट समथिंग, आई लाइक नेवर इंडल्ज्ड इन रॉन्ग थिंग्स, एटलीस्ट फॉर नाउ, ठीक है, ओकेजनली, बट नॉट ऑन द, तभी तो कभी। सो 11th 12th वॉज द सीन जब मेरे को पैसे कमाने, ऐसे कैसे कमाए पैसे, मतलब कुछ है ही नहीं, स्किल्स तो है नहीं, क्रिकेट खेल खेल के कितना ही, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। सो आई गॉट टू नो अबाउट दिस, सम माइक्रो इन्फ्लुएंसर थिंग होता है कि तेरा ऐसा 400-500 फॉलोअर है ना, ठीक है, तो तेरे को है ना ब्रांड ऐसा 100-200 रुपया देती है टू पोस्ट ऑन टू देयर कैंपेन। मतलब अभी इफ़ यू गो टू माई इंस्टाग्राम, थोड़ा सा नीचे जाओगे, यू विल सी, आई डोंट डिलीट इट बिकॉज आई फील दैट्स द पार्ट ऑफ मी विच हैज़ अपग्रेडेड नाउ, बट आई डिड ऐसा पॉन्ड्स ब्रांड आते थे, तो उनका ऐसा प्रोडक्ट भेजते थे वो, ऐसा फ़ोटो निकाल के भेजने का, दैट्स इट, एंड यू यूज टू गेट 200-300 रुपीज़ फॉर दैट। सो आई गॉट सम 7,000, दिस वॉज 2020, ओके, दिस वॉज 2020 व्हेन आई गॉट इट, एंड मैंने बहुत किया, वो फट्टे किया, एंड इट वॉज लाइक आई मेड सम 7,000 रुपीज़ आउट ऑफ इट। फ़ोन ख़राब है, मेरे को फ़ोन लेना है पापा को, पर वो मैंने लिया नहीं, ठीक है, मेरे दिमाग में था, पर आई वाज लाइक 7,000 से क्या ही, फिर तो ज़ीरो हो जाएगा। एंड मतलब मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं सुनता बहुत हूँ, तो एज आई सेड आई डोंट लिसन टू म्यूज़िक, बट आई लिसन टू पॉडकास्ट अलॉट। मतलब तू जो पॉडकास्ट बोलेगा मैंने एटलीस्ट एक एपिसोड उसका देखा होगा, ठीक है। सो आई लिसन अलॉट, एंड आई हर्ड समवेयर दैट इफ़ यू वांट टू बाय एक्स थिंग यू नीड टू हैव एटलीस्ट 3x ऑफ इट विथ यू, ठीक है। सो दैट वॉज द थिंग आई हैड इन माइंड। सो 7,000 का फ़ोन लेने के लिए मेरे पास 21,000 तो था नहीं, तो मैंने नहीं लिया। नाउ आई हैड दिस सेव्ड अमाउंट विथ मी, एंड तभी 12th में, ठीक है, दिस वॉज 12th नाउ, 2020, प्रॉपर 2020, व्हेन आई वॉज लाइक कि ठीक है, अभी ना कुछ तो खुद का करना पड़ेगा, एंड आई स्टार्टेड यूट्यूबिंग, विच फेल्ड ड्रास्टिकली। आई क्रिएटेड मोर देन 300 वीडियोज परसिस्टेंटली, ओके, 300+ videos with 300 subscribers. So that was, yeah, so that was pretty, मतलब कि I started though, ठीक है, एंड दैट्स वेयर आई गॉट टू नो कि बहुत कुछ होता है यार यूट्यूब में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि तू सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग ही कर सकता है, तू तेरे पास स्किल है वीडियो एडिटिंग का, तेरे पास स्किल है, तो यू विल मेक मनी। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, यू नो, आई स्टार्टेड गेटिंग गिग्स। लोग मेरे को देखते नहीं थे, पर मैं ही खुद का ऐसा भेजता था लोगों को, ठीक है। उससे मेरे को गिग्स आने लगे कि भाई हमारी वीडियो एडिट करके देना, ये वीडियो है ये। इट वेंट टू अ लेवल वेयर आई स्टार्टेड वीडियो एडिटिंग फॉर ह्यूज इन्फ्लुएंसर्स, मतलब जिनको तुम सब जानते होंगे, आई वॉन्ट नेम, बट या। सो आई वॉज लाइक सही है, पैसे भी बन रहे हैं, 7-8 हज़ार मिलते थे पर वीडियो, बस दैट्स वॉट आई वॉन्टेड। एंड बट देन वॉट हैपेंड वॉज आई स्टार्टेड माई एजेंसी, दैट्स द फर्स्ट स्टार्टअप वेयर, हाँ, मिक एंटरटेनमेंट। And if you see, it is pretty much similar to Ranveer Alabadia's year because it was very much inspired by him. Mick and Monk. Yeah, so it was very much inspired by him, but which didn't work out. मतलब मेरे को लगा था कि मेरे को अगर वीडियो एडिटिंग का काम आ रहा है, मैं 2 लोग और रखूँगा और काम करेंगे, पर फिर काम ही नहीं आया। So I spent money, I lost money there, ठीक है। So that failed, मतलब YouTube का failed हो गया, इसका फेल हो गया। अब इसके बीच में क्या हुआ ना, when I wanted to start an agency, मतलब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तुम सब जैसा, I told you the story, but still, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, एंड मेरे को नहीं करना था इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरे को पता था कि इंजीनियरिंग करूँगा तो धंधा के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एंड हियर सी, आई अग्री कि यू गाइज डोंट स्टडी होल ईयर, ठीक है,
बट एटलीस्ट ध्यान देना पड़ता है कि क्या सीख रहे हैं, ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि हाँ जनरल नॉलेज ठोक के आ जाओ तो मार्क्स मिलेंगे, राइट. सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जिसमें से जनरल नॉलेज हो ताकि बस डिग्री आ जाए. सो आई टुक आर्ट्स एंड डिड मास मीडिया. एट दैट टाइम माई पेरेंट्स वर नॉट कूल अबाउट इट. मतलब दे सपोर्टेड मी कि हाँ तू कर, पण इट वॉज मोर ऑन द लाइन्स की are you pretty sure about it because you are. I think that's the scene in every household actually. So anyway, talking about more of your failed venture, which is Mick, like what is the one learning experience that you had from it, if you would say one major one? Give opportunity to people whom you believe will make sona of that opportunity. So would you say like the people you appointed for the video editing was a mistake? No, I mean I tried giving an opportunity to people who didn't even needed it or didn't even had any interest doing it. I was like, तू मेरा दोस्त है और मैंने बचपन से सपना देखा है मैं दोस्त के साथ धंधा बनाएगा, चल. But it never worked out. You said कि Mick failed because धंधा आना बंद हो गया. So what was the reason behind that? धंधा आना बंद होना is कि मैं अप्रोच करना, मेरा अप्रोच एक्सेट्रा एक्सेट्रा. धंधा आना इज इन इट वॉजेंट कि मेरा वीडियो एडिटिंग का स्किल नहीं था या ऐसा. द थिंग वॉज कि इन फ्रीलांस वर्ल्ड इट हैपन्स अ लॉट एंड दीज आर ड्राई स्पेल मंथ्स वेयर इफ यू आर फ्रीलांसिंग कुछ महीने ऐसे होंगे जहाँ पे तुमको बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, पर कुछ महीने ऐसे होंगे देयर इज नथिंग दैट्स कमिंग इन. इवन इफ यू आर आउटबाउंडिंग, इवन इफ यू आर डूइंग every single thing that you want to do, you don't get clients. And that's reality of life, dude. तभी नहीं लगा था कि ऐसा होगा क्योंकि तभी सब पहले 2 महीने में अच्छा चल रहा था, बट उसके बाद shit went down. So I had to. He asked me about lesson learned. Okay, so this was the lesson because I hired people. Okay, I didn't hired people. I was like चल ये माझ्यासोबत कर, ठीक है. So बट दोज गाइज डिडंट नीड इट. मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, बस मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त है इसलिए वो कर रहे हैं. नेवर डू दैट. फाइंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इट, लाइक वॉट यू आर डूइंग. अगर उनको इंटरेस्ट रहेगा तो दे विल मेक श्योर कि यू सक्सेड. I think that's something very important. Coming to your next startup, which was Elite NFTs. Yeah. First, I think before we talk about Elite NFTs, we need to enlighten the audience about NFTs because अभी तक as a concept India में नहीं penetrate हुआ है. नहीं है. See, and होगा भी नहीं. To be honest, by that I don't mean NFTs won't penetrate. NFTs which are being traded now, they won't. Why? I have a pretty nice reason behind it. Can you first explain what NFTs are? Yeah, sure. I will. So, what is an NFT? Today, NFT from a larger perspective is art and collectible. ठीक है. एक आर्ट है जो ब्लॉकचेन पर है, which cannot be tampered. Now, what is this solving as a thing for an artist is कि आज अगर मैं कोई भी, आपके पास iPad है अभी, ठीक है, मैं अगर iPad पे Procreate पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ एंड मैंने वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया. द मोमेंट आई पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम, एनीवन कैन स्क्रीनशॉट इट एंड से दैट दिस इज माइन, राइट. व्हाट आई एम डूइंग इज बिफोर पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम आई एम गोइंग ऑन टू ब्लॉकचेन, स्टोरिंग इट देयर, विच इज गिविंग मी अ रिसिट, राइट. अगर आप किधर भी कुछ भी स्टोर करोगे, आज गोल्ड लेकर जाओगे बैंक के लॉकर में, दे विल गिव यू अ रिसिट कि आपने स्टोर किया है, राइट. सिमिलरली ब्लॉकचेन गिव्स यू अ रिसिट विच इज इन फॉर्म ऑफ टोकन which is non-fungible. So that token, that receipt is called non-fungible token. Okay, and you are trading that receipt with people. So basically, you are trading ownership of that. Yeah, collectible. that receipt is a ownership at the point, right? So that you are trading the ownership of that artwork. Now, what is happening in India, as you said, कि इंडिया में लोगों को नॉलेज नहीं है. अभी के लिए NFTs एकदम easy लैंग्वेज में यही है कि ये आर्ट एंड कलेक्टिबल है, बट जस्ट इमेजिन इट फ्रॉम द बिगर परस्पेक्टिव. ठीक है, आज आर्ट एंड कलेक्टिबल है पर गेमिंग में इसका बहुत यूज़ है. जैसे कि आज हम गेम में स्किन खरीदते हैं. मैंने आज तक 1 रुपया खर्चा नहीं किया गेम पर,
पर I know my cousins who have spent thousands on Free Fire का skin. But is there any way to recover that money back? No, right? There is no way. You can't sell. तूने एक बार उनसे खरीद ली तो वो स्किन तू बेच नहीं सकता. So you mean to say कि वो स्किन का ओनरशिप अगर आप ट्रेड करते रहो. हाँ, and you can trade that skin with other people. That's a bigger game. For yeah, apart from that, now I bought a house. Okay, पर हाउस खरीद रहा हूँ मैं, घर खरीद रहा हूँ, उसमें बहुत झंझट है ब्रो. रजिस्ट्रेशन करो, ये करो, वो करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. गवर्नमेंट can say that mint an NFT of the house. By that they mean कि house का जो भी paper रहेगा etc etc put it on blockchain, store it, the token being traded जिसके wallet में token है उसका वो घर है. So मतलब वो house का sale करना थोड़ा सा simple easy हो जाएगा. Do you know Maharashtra government, okay, मतलब Maharashtra Education Board gave certificate for diploma people as an NFT. That's a reality. Okay, we were not aware of that. But then that diploma certificate is yours. It's mine, okay, but मैं तो उसको आगे बेचूंगा नहीं ना, because उस पे मेरा नाम. But तेरा ओनरशिप है ना. अगर तेरे इधर बाढ़ आ गई, तेरे तो सर्टिफिकेट गए, अभी जाते रहे फिर बोर्ड में 100 बार. तू बोलेगा कि डिजी लॉकर भी तो सेम चीज कर रहा है, पर डिजी लॉकर पे जो तेरा सर्टिफिकेट्स आ रहा है एक सेंट्रल रजिस्ट्री से आ रहा है. ठीक है. सम corrupt officer, let's just imagine, can break into the system and छेड़छाड़ कर सकता है. But when it is on chain, nobody can tamper it. That's the point of giving a certificate as an NFT. So there are use cases. These use cases will penetrate, like the real estate, gaming, etc. etc. But for now, the larger picture of an NFT is artwork, which won't. Yeah, but that being said, NFT scams like बहुत ज़्यादा सुनने में आता है. Because basically NFT isn't backed by anything, right? It is backed by the credibility of an artist or the credibility of the person who is giving you the. So the only thing backing the NFT is the credibility of the artist. So not only artist, now art के देखो जो mint करने दे रहा है, ठीक है, अभी let's say जो certificates mint हुए by Government of Maharashtra. Government of Maharashtra is a credible source, right? सिमिलरली अगर आर्टिस्ट कोई बड़ा है जो मिंट कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी के साथ आता है. अभी अगर स्कैम में तो हर चीज़ में स्कैम है यार. आज तो यूपीआई के थ्रू भी स्कैम हो रहे हैं, तो यूपीआई बंद कर देंगे क्या? नहीं करेंगे. दैट्स द थिंग. बट आई वॉन्ट टू गिव यू अ रीज़न. नहीं तो मेरे को बहुत ऐसा NFT कम्युनिटी का बैकलैश आएगा कि बोलेंगे कि तू कैसे बोल सकता है कि NFT नहीं बढ़ेगा. NFT बढ़ेगा, बट द आर्ट वाला सेक्टर जो है ना is very small in our country. क्योंकि look at the disposable income we have, right? हम लोग 15-10 रुपए का वड़ा पाव मिलता है, वो किधर 12 रुपए में मिल रहा है ना, तो भी ऐसा 2 बार सोचते हैं कि भाई 2 रुपए एक्स्ट्रा लूँ या नहीं लूँ. At the end, probably not us, but the people who is the majority of the India, right? So अपने पास अगर disposable income ही नहीं है, मेरे पास यार वड़ा पाव खाने का पैसा नहीं है, तो मैं क्यों आर्ट खरीदूंगा? That's the fairest ये. ठीक है. सो यू हैव टू क्रिएट दैट मार्केट फर्स्ट. हाँ, मार्केट इफ आर इनकम पर कैपिटा इनकम अगर ग्रो हो रहा है, देन देयर माइट बी द मार्केट फॉर कलेक्टिबल्स. आज यूएस में आई हैव बीन वॉचिंग द रिक हैरिसन्स एंड ऑल. वो पॉन शॉप होता है ना, वो वाला हिस्ट्री TV 18 पे आता है. वो कितना बड़ा मार्केट है यूएस में. वाई? बिकॉज कलेक्टिबल्स इज अ ह्यूज मार्केट, बिकॉज दे हैव डिस्पोजेबल इनकम. इंडिया में वो है ही नहीं. सो दैट्स द पॉइंट कि आर्ट बढ़ने में बहुत टाइम है. Also in India, what is the biggest misconception you think people have about NFTs? मतलब misconception about not NFTs but crypto industry and Web3 space as a whole is legal नहीं है. लीगल नहीं है तो 30% टैक्स क्यों दे ले रहे हैं हमसे? मतलब there was an MP in Lok Sabha, okay, who was saying something like कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सो वियर्ड. वाई? बिकॉज वो कह नहीं रहे कि वो क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है, बट स्टिल दे आर टैक्सिंग क्रिप्टो, राइट? यू कांट टैक्स समथिंग. कोकेन को तुम टैक्स नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज इट इज इलीगल. सो इफ इट इज नॉट लीगल, हाउ आर यू टैक्सिंग दैट? जस्ट टू
मतलब जिनको इंटरेस्ट है उसमें उनको ऐसा मत करो बोलने के लिए. That's the point. So that's the thing of it. So the legal part एक है, and the second misconception I feel is the scam है यार ये सब. मतलब मेरे माँ को भी लगता है अभी भी कि क्या करता है ये सब तू ऐसा, कौन खरीदता है तेरा फोटो, मतलब तू फोटो बना के. Also about NFTs, like how would it impact the metaverse in the future? That's one thing. And do you believe in the concept of the metaverse? Like, do you think it can actually but मेरे को ही नहीं पता कि metaverse कैसा होगा. I do believe in metaverse and I feel that's the मेरे जैसे आलसी बंदे के लिए बहुत अच्छा है वो. क्यों? Again is लॉकडाउन के बाद if you ask me to meet in person, ठीक है, मैंने आज भी, मेरे को क्रिस अभी है नहीं यहाँ पे, क्रिस ने मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज करा, ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज वहाँ पे ऑडियंस है क्या, अगर नहीं है तो फिर ऑनलाइन कर लेते हैं. व्हाई? बिकॉज मेरे को नहीं निकलना यार बेडरूम से बाहर, राइट. एट दैट द आलसी मी इज बिग, राइट. सो मेटावर्स इज अ थिंग व्हिच विल लेट मी एंजॉय थिंग्स in the comfort of my home. हाँ, so हाँ, there are disadvantages, वो सब हो जाएंगे हाँ कि, but मेरे को comfort है ना, that's what I need. Now for me, what is metaverse? I really don't know. I really support the concept. मतलब मेरे को पता है कि एक ऐसा वर्ल्ड होगा वर्चुअल वगैरह, पर वो कैसे दिखेगा या फिर कैसे एक्सपीरियंस होगा उसमें, क्योंकि आज GTA, फिर GTA को भी एक मेटावर्स कह दो. Fair enough, yeah. If that's the metaverse, GTA भी एक मेटावर्स. But I don't feel that way. Metaverse has to be something which सबको access हो. Like Instagram, Instagram can be a metaverse then. Yeah. आपने बोला like some time back कि your mom still doubts कि ऐसा तू कुछ बनाता है तो वो बेचता है, वो क्यों कोई खरीदेगा. A common question. जब कोई भी आर्टिस्ट NFT का एक डिजिटल आर्टवर्क बनाता है, कोई उसको क्यों खरीदता है? How do you create the hype? How do you market it? Yeah. There are two types of NFTs now in artworks. One is individual artist selling an NFT. Like me, मैं खुद ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ. The second one is collections, which is like कि एक टीम है पूरी, फाउंडर, co-founder, marketing lead, artist, etc. etc. वो पूरा एक यूटिलिटी बना के एक पूरा एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं as an NFT. I will give you both the scenarios why people buy it. In the first scenario where an individual artist is doing something, the thing is that मैं एक पेंटिंग क्यों खरीदूंगा? घर पे लगाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि मैंने इसका पेंटिंग इतना महंगा है खरीदा. और the last reason might be कि to support an artist. I've collected over 200 plus NFTs. The reason behind it is to support an artist. मेरे को कोई शो ऑफ का ये नहीं है, मतलब nothing. So to support an artist is the reason. First two are कि मेरे को अगर मैं वो फेमस है कोई तो it would be कि यार मैं शो ऑफ कर सकता हूँ कि मेरे पास इसका है, मैंने खरीदा है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं खरीद सकता हूँ. Or to support the artist, for the first batch. The second batch, when it comes to collection, people buy it because of the product and the utilities that they provide. Now there is this brand called Artifact. Okay, it is RTFKT. Okay, that's the so what they do is they have created a metaverse NFT fashion brand. Okay. Elaborate on that. What do you mean? Digital fashion. By that I mean कि वो digital AR में भी होगा पर तेरे को घर पे भी मिलेगा. So when you buy their NFT, ठीक है, they have मतलब बहुत कुछ है उनके पास. पहला है कि avatar, ठीक है, तो उनका एक क्लोनेक्स करके एक कलेक्शन है जिसमें वो avatar है सिर्फ, ठीक है, वो avatar को लेके तुम कहीं घूम सकते हो in the future. Second is their कपड़ा, ठीक है, they create various you know hoodies, they create various sweatshirts, etc. and you can buy them and use it in AR, or you can go and forge and get it in your house. So there are these kind of, and फिर वो hype वाले भी होते ही हैं कि हाँ ये बारी मीम ट्रेंड हो रहा है, बेच दिया. You sold the first NFT meme. Yeah. You become, yeah. That got you someplace. You can talk a bit about that and maybe how it led to the formation of Elite as well. Did that play a big part? That was
the thing for which I started Elite. Okay, so how I got into NFTs is what I would yeah. So जैसे ही मिक एंटरटेनमेंट बंद हुआ था, इट्स लाइक कुछ तो करना पड़ेगा बॉस, तूने इंजीनियरिंग छोड़ के आया है, लूजर नहीं है तू, ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा. आई हैड सम सेविंग्स लाइक मतलब ऐसा एक 10-20 हज़ार का सेविंग था मेरे पास. तो आई वॉज लाइक कि क्या करे अभी इसका. तो पूरा इंडिया ट्रेड कर रहा था लॉकडाउन में. या स्टॉक्स, सब लोग स्टॉक्स में घुस रहे हैं. So I was like मैं भी करता हूँ. So my cousin is a full time trader, not in lockdown but उसके बहुत पहले से. So I went to him, he was like हाँ मैं सिखाता हूँ, he taught me like technical analysis etc etc. I was like चलो पैसा बनाएंगे. I started stocks, I made some money there like 3,000-4,000 rupees जो भी था. And then got to know about crypto. Now crypto is something जो दिन में 10-20% हिलता है. स्टॉक्स 2-3% भी नहीं हिलते. और स्टॉक्स को ही वॉलेटाइल बोलते हैं, तो क्रिप्टो को तो. सो दैट्स द रीजन आई वाज लाइक पैसा कमाना है तो भाई जाना पड़ेगा ना क्रिप्टो में. तो ऐसा आई स्टार्टेड क्रिप्टो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ट्रेडिंग देयर. आई बॉट डोजकॉइन फॉर 0.6 रुपी, सोल्ड इट फॉर 45. नाउ यू डू द परसेंटेज गेन्स. That too in like 2 months I guess. Yeah. So I made some 4,000 का या 5 मतलब 4-6 हज़ार का 3-4 लाख बन गया. नहीं मैंने मतलब थोड़ा बहुत फ्यूचर्स में भी करा, थोड़ा बहुत ऐसे. सो लेवरेज डेट बहुत पैसा कमाया भाई डोजकॉइन. इलॉन दादा की जय. So but that happened and that changed life too. Like a guy who had 20,000 with him now has 3 lakhs 4 lakhs with him. 18 साल का था मैं भाई. 17 का था प्रोबेबली. 4 लाख का ऐसे क्या ही करेगा मैं, मतलब क्या करूँ भाई. ठीक है. तो तभी ना मेरे को NFTs के बारे में भी पता चला, क्योंकि वहाँ वो है ना एक $69 मिलियन का एक सेल हुआ था बीपल वाला. आई वॉज नोइंग अबाउट NFTs पहले से ही, बट वो 69 मिलियन वाला जब भी सेल हुआ ना, तो आई वॉज लाइक इतना क्या है ये चीज़ में. 69 मिलियन क्यों दिया किसी ने. सो आई वाज लाइक मैं भी कर सकता हूँ. आर्टिस्ट तो मैं हूँ ही, वीडियो एडिटिंग करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स आता है, ड्राइंग भी आता है. ठीक है. सो आई यूज्ड टू ड्रॉ अ लॉट. मतलब आई वोंट से दैट इज़ माई हॉबी. ठीक है. बट दैट्स माई पीस वाला टाइम. मतलब कि अगर मेरे को बहुत थॉट्स आ रहे हैं, स्ट्रेस बस्टर. हाँ, काइंड ऑफ लाइक दैट. हाँ मतलब मैं पूरे साल में कभी नहीं करूँगा, पर बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है तो कुछ तो स्क्रिबल कर दूंगा. ठीक है. सो आई वॉज लाइक कि मेरे को आता है, करते. आई स्टार्टेड, मतलब मेरे को लगा कि यार सस्ता होगा, कितना ही लगेगा भाई. 25,000 रुपये लगते थे एक NFT मिंट करने के तभी. आई वाज लाइक करना तो है NFTs, पर इतना पैसा दे के नहीं करना. ठीक है. बट देख, पैसा पड़ा होना इज डिफरेंट. ठीक है. पर 25,000 रुपये एक चीज़ के जो बिकेगी नहीं बिकेगी पता नहीं है. सो यू वॉन्ट डू दैट ब्रो. कितना भी पैसा कमा ले भाई. मैं वो बंदा हूँ जो भाई अगर रिक्शा के 10 रुपये बचा के चल के जाना होगा ना, मैं जाऊँगा. ठीक है. इवन नाउ आई वुड डू द सेम थिंग. सो दैट्स द रीज़न आई वॉज लाइक कि चिल मारते हैं अपन, नहीं करेंगे. एट द सेम टाइम Wazirex is India's biggest cryptocurrency exchange. They launched their NFT marketplace. I was like first few artists who got it. पहले 50-100 में रहेगा, मैं 50 में ही रहूँगा प्रोबेबली. तो आई स्टार्टेड मिंटिंग देयर. 15-20 दिन कुछ नहीं बिका ब्रो. टू बी ऑनेस्ट आई मिंटेड एवरी सिंगल डे 3 NFTs. ठीक है. मैंने बना के रखे थे. उसका मिंटिंग कॉस्ट वाज लेस. हाँ, उसका मिंटिंग कॉस्ट वाज बिकॉज द फर्स्ट मार्केट प्लेस दैट आई सेड, इट विल बी टेक्निकल फॉर द पॉडकास्ट, बट इट वॉज ऑन Ethereum, which is a costlier blockchain than Binance Smart Chain, which is a pretty cheaper blockchain to mint on. So I was like ठीक है, इसमें 100-200 रुपये लगते थे एक मिनट के. लाइक ठीक है ना भाई. सो आई मिंटेड फॉर लाइक स्ट्रेट 15 days में कुछ 30-40 NFTs भी मिंट किए थे, कुछ नहीं बिका. एंड देन अ डे केम व्हेन 3 NFTs एक दिन में बिक गए. इट्स लाइक ठीक है, मतलब 10,000 रुपये मिल गए. जितना पैसा डाला था उससे तो ज़्यादा ही मिला है मेरे को. तो ठीक है. And then the best day of my life came when I sold some freaking 14 NFTs in a day, which was like 60K, 60-70K. अब मैं कभी इतना पैसा देखा ही नहीं ना यार लाइफ में, एक दिन में. ठीक है. तो मैं रो दिया भाई. मतलब क्या इतना पैसा किधर से आया, मतलब क्यों आया. ठीक है.
बट देन फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी बनते गई। अब एक सेकंड, वो जो 14 NFTs का सेल था उसके पीछे का कोई रीजन यू आर अवेयर ऑफ? आर्टिस्ट सपोर्ट वही था कि कलेक्टर्स थे who were supporting artists, who were liking people's artwork, etc. So they were like buying it. Short diversion. At this time, where were you personally? Like you were in college doing BMM? Yeah, doing 12th year? BMM. Yeah. You were, okay. First year. कुछ ज़्यादा काम तो नहीं था. काम मतलब कुछ नहीं था यार, घर पे ही बैठा था मैं जाता नहीं. You shared as a one subject का name over there. If you'd like to share that story, I think that would be interesting. So, we'll get back to the NFT. Yeah, sure. So मैंने BMM कर रहा था. मेरे को सेकेंड ईयर में कुछ एक सब्जेक्ट था, उसका नाम था फिल्म्स एंड कम्युनिकेशन. अब वो इतना फालतू, मैं फालतू नहीं बोलना चाहता, बट इतना व्हाई इज दैट सब्जेक्ट अ सब्जेक्ट आई डोंट. उसमें भाई पिक्चर देखने होते थे एंड फिर उस पे जाके तुमको सवाल पूछेंगे लाइक ये कैरेक्टर का. सी टू मेक अ जोक आई कैन, एज आई सेड, आई विल से कि हाँ उन्होंने पूछा कि ये हीरो का नाम क्या था. इतना भी एकदम इजी नहीं था, बट दैट इट वाज वेरी इजी ब्रो. कि तुमको ये स्टोरी लाइन में क्या, तुम अगर रहते तो तुमको अगर लगा कि ये पिक्चर सेकेंड हाफ में बोरिंग है तो तुम होते राइटर तो तुम क्या लिखते. मैं कुछ भी लिखता भाई. मेरे को क्या सच्ची में थोड़ी बननी है फिल्म, किसके पैसे लगने हैं, तो कुछ भी लिख के आ जाओ अपने मन का, दे देंगे मार्क्स. एंड द थिंग वाज व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर तो दे कुडंट गिव ऑब्जेक्टिव, सॉरी मतलब ऐसा बड़ा राइटिंग वाला क्वेश्चन बिकॉज इट वाज ऑनलाइन. सो द थिंग इज दैट मतलब कि एवरीवन, ओके, एवरी सिंगल पर्सन वाज कॉपीइंग इन ये लॉकडाउन. मेरे को ऐसा खोलना नहीं है जब तक सर्टिफिकेट आ नहीं जाता. पर ठीक है, पीपल कॉपीड लिटरली कि ऐसा भाई को पीछे बिठा के ऐसा जोर से पढ़ रहे हैं सवाल, भाई गूगल करके बता दे रहा है. सो लाइक या सो एंड see for engineering probably it might be difficult because numbers change, you have to make the calculations. हमारा क्या है यार, तुम पूछ रहे हो ये जवानी है दीवानी में इसके कैरेक्टर का नाम क्या है, लिखा है, गूगल करो बता देगा. सो इट वाज प्रिटी ऐसा टाइम पास सब्जेक्ट टू बी. मतलब अच्छा है, मतलब एज अ फिल्म मेकर इफ यू आर स्टडिंग दैट दे टीच यू अबाउट कि ये शॉट से क्या डिपिक्ट होता है एक्सेट्रा. बट हमारे लिए वो एग्जाम में इतना डब्बू ऐसा टाइम पास था पेपर कि हमको बहुत उसका फन लगता था. अभी फिफ्थ सेम या फोर्थ सेम में, फिफ्थ सेम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन था ब्रो. ठीक है, फॉर व्हाट, राइट अ स्लोगन फॉर XYZ ब्रांड. अभी XYZ ब्रांड कैन बी एनीथिंग, लेट्स से रेड बुल. ठीक है, उसको तेरे को 4 वर्ड का स्लोगन लिखना है, उसके तेरे को 15 मार्क्स मिलते हैं. और वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. बट यू कांट राइट समथिंग लाइक कि हाँ रेड बुल ड्रिंक एंड शाइन, इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है ना. यू हैव टू मेक इट क्रिएटिव. ओके, सो इफ इट इज लाइक मॉन्स्टर, लेट्स से लाइक अवेकन द डेविल इनसाइड यू, ऐसा कुछ लिखेगा तो मार्क्स ज्यादा मिलेगा. देखो मार्क्स 5 मार्क्स तो वैसे ही मिलेगा कुछ भी लिख के आया तो. पर टू गेट नाइसर मार्क्स यू हैव, इट हैज टू बी क्रिएटिव. बैक टू द NFTs. आपने बोला कि थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट आई एक्चुअली वांट टू एक्सप्लोर दैट टेक्निकल पार्ट इफ यू वांट, लाइक फील लाइक इट. इथेरियम में और फिर बाकी के जो ब्लॉकचेन्स है, एक्सपेंसिव कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा चीप होगा, ये कैसे? मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लॉकचेन इज ऑफ कोर्स इथेरियम. एक्सपेंसिव एज इन अभी तो थोड़ा बहुत सस्ता हो गया है, बट आफ्टर द प्रूफ ऑफ स्टेक अपग्रेड एक्सेट्रा. बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू डू एनीथिंग ऑन टू द Ethereum chain. Even if you want to just transfer Ethereum to each other, it will take a hell lot of money. Also for this to become a popular market in India, the price has to come down, right? Otherwise, so that's what Polygon is doing, right? So the Polygon chain is a layer 2 solution onto the Ethereum. Now what they do is, let's just imagine कि एक layer है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे लेयर 0 पे बहुत काम होता है. ठीक है, बहुत काम. ठीक है, तो वो वहाँ पे काम करने के बहुत ज़्यादा पैसे लेते. अब इसकी फर्स्ट फ्लोर पे विच इज़ लेयर 1, सॉरी लेयर 2, मैंने गलत बोल दिया, लेयर 0 नहीं, लेयर 1 फिर लेयर 2. सो लेयर 2 इज़ पॉलीगॉन. ओके, नाउ व्हाट पॉलीगॉन डज इज, वो बोलते हैं कि तुम ना उनके पास काम मत दो क्योंकि वो महंगे में करके देंगे तुमको काम. तुम हमारे पास आओ,
हम तुमको काम सस्ते में करके देंगे बट तुमको उनका सिक्योरिटी देंगे. सो व्हाट दे डू इज दे मेक ट्रांजैक्शन ऑन देयर ओन ब्लॉकचेन्स एंड देन सेंड द होल. अभी समझ, क्योंकि तू एक ट्रांजैक्शन करेगा इथेरियम पे तो तेरे को 10 रुपया लगेगा फॉर एन एग्जाम्पल. इट वोंट, इससे बहुत ज़्यादा लगेगा बट हाँ. बट इफ़ यू कम ऑन टू द पॉलीगॉन चेन, व्हाट विल दे डू इज दे विल डू 10 ट्रांजैक्शंस. उनका एक ग्रुप बना के वो एज अ 1 ट्रांजैक्शन इथेरियम ब्लॉकचेन पे पोस्ट कर देंगे. तो वो 10 रुपये 10 ट्रांजैक्शन में बढ़ गए तो तेरे को 1 रुपया ही गैस फी लगा. दिस इज वॉट इज हैपनिंग. सो दैट्स द रीजन दे आर चीप. बट देर आर वेरियस कॉम्पिटिशन लाइक सोलाना है, बहुत सारे हैं, सोलाना, तेजॉस, नियर. सो देर आर वेरियस बट मेनली वॉल्यूम इज ऑन इथेरियम एंड पॉलीगॉन ओनली. सो यू नीड टू नो अबाउट इथेरियम, पॉलीगॉन एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन. बस बहुत हो गया. Anyway, tell us about Elite NFT, about Liqui.io a little bit, just in brief. Just in brief, In brief, because Elite NFT is a startup which I started in 2021. It's a one-stop solution for anyone who wants to do anything into Web3. Be it, we started as a design studio, but now we do development as well. I have a team of 10 there. I just can't imagine कि कैसे कर लिया मैं. But हाँ, I have a team. because you're pretty much our age only, like 1-2 years bigger probably. नहीं यार, what's your age? 19/20. 1920. What's your age? I'm 19. हाँ तो same भाई. 20 probably. 2002 born, yeah. Yeah, so because you have got to a place now where although you are our age, we are interviewing you for a podcast. So what is your approach for college students now? Like, what is your advice to them? How can we get on that chair? यार मैं कुछ स्पेशल नहीं किया भाई, टू बी ऑनेस्ट. मेरे को जो पसंद है वो मैंने किया, ठीक है. क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैंने वो बहुत सारे NFT सेल कर दिए. उसके बाद मैंने वो मीम NFT बेचा 4 लाख में, विच वॉज अगेन नाइस थिंग फॉर मी. एंड आई स्टार्टेड Elite NFT. सो आई स्टडीली ग्रो होते गए. सो आई डेंट डू मच. बस मैंने ना वो ऐसा फेस्ट में टाइम वेस्ट नहीं करा. well that might be a tip that I should take, considering how involved I have been. बट नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद द कॉलेज स्टूडेंट्स आई वुड जस्ट से, मतलब वो तो ऐसे ताना मारने के लिए बोला, बट ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस होता है प्रोबेबली. आई नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट, आई वोंट लाइक से, बट आई वुड से स्टार्ट योर ओन थिंग. ये कॉलेज डिग्री से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला. लाइक at least start going, क्योंकि see what is happening. I will just give you an example. I hire a lot of interns or I hire a lot of college kids, मतलब अपने उम्र के. हम ही ठीक है. हाँ. So उनको क्या लगता है ना कि real world is pretty different than what you face into the college. Because what happens कि तुमको college में still you are into a pond, ऐसा ocean में नहीं होता अभी भी. You are in a swimming pool where you are competing amongst yourself. But when you go into the ocean, it is totally different. And then people can't take that pressure. And then they leave. See, I am not the person who likes to give pressure. But जो काम दिया है, वो करना है. As easy as that. Yeah. But when a college student, like literally out of the college and going for his first job, is what I'm saying, is so prone to not doing work on time or is so ये कि उसको रियल वर्ल्ड में, क्योंकि भाई तूने टाइम पे नहीं करा तो मेरा पैसा जा रहा है, राइट. आई एम लूजिंग मनी ऑन दैट एंड रियल मनी. वो इधर का ऐसा भातुकली का पैसा नहीं है इधर, राइट. रियल पैसा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट दे डू वर्क. सो आई विल सजेस्ट गो टू द रियल वर्ल्ड. डोंट वेस्ट योर टाइम इनटू स्टडीइंग एक्सेट्रा. मतलब पास होने इतना कर लो, डिग्री चाहिए ऐसा मेरी माँ बोलती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. मेरे को नहीं लगता चाहिए, पर हाँ, आई सजेस्ट गो टू द रियल वर्ल्ड, डू फ्रीलांस एंड ऑल, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. I think like, is it fine if we take a 5-minute break and then we can come back to that Singapore-based wala story which you said you were going to tell me? Sure. Like, briefly mentioned that you were going to tell me the Singapore story. I want to know. Okay, so the Singapore story. Okay, so what happened was in 2021, I started the company in 2021 December. Okay, in Jan 2021, I was getting offers from VCs, investors, to invest in my company. Now the thing was कि मेरे को लगा कि क्यों लेना है, ठीक है. मतलब 1 महीना पुराना कंपनी है and they were valuing it at $1 million, ठीक है. 8.2 crore rupees.
विच इज़ मैंने कुछ किया भी नहीं है. बट एट दैट टाइम द थिंग वॉज दैट इन इंडिया it was not a company doing NFTs, and people VCs want to diversify their investments, right? So they wanted to invest in the NFT space, and we were one of the companies they came up to. I had 3-4 offers, okay, $1 million, $500,000, etc. At this time you were freelancing अकेले. At this time I was 2 people team, 2 or 3 people team, okay, in Jan, probably 2 people team I was. एंड देन इट वॉज मोर ऑन द साइड कि ठीक है $1 million है, तो मेरे को पहले लगा कि चाहिए क्या, पर मेरे को लगा कि ठीक है मिल रहे ले ले भाई, ठीक है. सो आई वाज लाइक ठीक है. सो लाइक इन्वेस्टर्स वर इन्वेस्टिंग लाइक X amount in the company. Now investors want their company to be situated into Singapore and not in India. Now why is that the case? This is the case because in India the tax laws are pretty stringent, मतलब बहुत strict है या फिर बहुत ज़्यादा tax है. In Singapore it is much business friendly. So the company was to be registered in Singapore, okay. But now what happened, 2 महीने बाद कंपनी अभी तक रजिस्टर हुआ नहीं था. एंड आई वेंट टू द इन्वेस्टर्स की गाइज यू आर इन्वेस्टिंग बट कंपनी, मतलब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू रजिस्टर कंपनी. सो आई वाज लाइक यार रजिस्टर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा वैसा. एंड देन आई वाज लाइक यार देखो, इवन इफ ये लोगों ने मेरे को पैसे नहीं दिए, मेरा कंपनी तो चलने वाला है, आई नो इट. तो क्यों ले रहा हूँ मैं पैसा और क्यों दे रहा हूँ मैं अपना X% स्टेक टू देम, राइट. तो मैंने कहा कि नहीं चाहिए मेरे को पैसा और तुम्हारा गाइज, थैंक यू. तो फिर वो कंपनी आधा ही रजिस्टर हो गया उधर. तो कंपनी रजिस्टर हुआ नहीं, ठीक है. मतलब उन्होंने अभी पैसे दे दिए रहेंगे प्रोबेबली रजिस्टर करने. अभी ऑफकोर्स गवर्नमेंट का टास्क है तो शायद वो स्लो होता होगा. तो फिर यही हुआ. तो मैंने कहा कि नहीं गाइज सॉरी, आई हैड द टर्म शीट, आई साइंड द टर्म शीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई गॉट द फर्स्ट डिसम्बर्समेंट, मतलब पहला पैसा जो आता है ना कंपनी में इन्वेस्टर वाला, वो भी आ गया था. बट मैंने रिटर्न कर दिया सारा पैसा कि नहीं सॉरी, बूट स्ट्रैप करूँगा मैं. तो वो सिंगापुर कंपनी ना, मैं सबको बता दिया कि मेरा कंपनी सिंगापुर में, ठीक है. और फिर रजिस्टर ही नहीं हुआ. अभी वो लॉल हो गया ना. फिर मतलब ऑफ कोर्स आई वाजंट लाइंग अबाउट कि सिंगापुर में कंपनी रजिस्टर हो रहा है, पर वो हुआ ही नहीं. तो या आई हायर्ड पीपल सेइंग वी आर हेडक्वार्टर्ड इन सिंगापुर, एंड देन दे वर लाइक कुछ मिल भी नहीं रहा है, PF नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो कौन सा कंपनी. फिर मैंने नहीं हुआ यार, सॉरी यार. so yeah, that was the Singapore story. But probably अच्छा भी हुआ नहीं किया, क्योंकि मैं अगर बूटस्ट्रैप करूँगा तो सिंगापुर में इट इज़ मच कॉस्टलियर फॉर बुक कीपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल्सो इज़ बजटेड इन टू योर कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस. सो इट्स बेटर. And I would really like to say this, okay, this is not good, but I want to say this, that this should not stop you. Now what happened, investors चले गए, ठीक है. अभी मेरा ऐसा था ना कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे ना चलाने के लिए धंधा. मेरे पास पैसे आने वाला था, मैंने काम किया था, उसका पैसा मेरे को मिलने वाला था, पर टू रन द बिजनेस देयर वाज अ गैप इन द सैलरीज दैट नीड्स टू बी पेड एंड मनी दैट आई वुड बी गेटिंग फ्रॉम माई क्लाइंट्स. सो आई नो हाउ आई हैव मैनेज्ड इट. बट क्योंकि वो कंपनी भी रजिस्टर नहीं था, मैं तो UPI करता हूँ, अभी भी करता हूँ, UPI करता हूँ सैलरी लोगों को, ठीक है. तो मतलब 5 लोगों को आज करूँगा, क्योंकि 1 लाख का ही लिमिट होता है, तो 5 लोगों को आज, 4 लोगों को कल, ऐसे करके आई पे यूज टू. अभी तो कंपनी, सो व्हाट हैपेंड, मैंने ना कंपनी 1 साल रजिस्टर ही नहीं कराई. हाँ करें करके उसको ऐसा प्रोक्रेस्टिनेट करते गया. I never registered company, but that gave me है कि गवर्नमेंट ऑल्सो, मतलब गवर्नमेंट नहीं, पर ऐसा ये होता है कि अगर तेरे को धंधा करना है तो पहले रजिस्टर कर, फिर सब बना. आई डिड इट उल्टा. मैंने धंधा बना लिया, मेरा रेवेन्यू हो रहा है 50 लाख के ऊपर साल का, उसके बाद आई रजिस्टर्ड अ कंपनी. प्रोबेबली वो टैक्सेस में थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा मेरे लिए, बट नाउ आई हैव अश्योरिटी कि भाई मेरा चल रहा है धंधा, एंड देन आई एम रजिस्टरिंग अ एंटिटी विच इज़ मच मोर, मेरे को लगता है कि एक वायबल ऑप्शन था. सो व्हाइल डूइंग बिजनेस पीपल विल से कि अरे ये लीगल साइड का तुम्हें ध्यान देना है, ये कंप्लायंस का ध्यान देना है. जब तक तुम इतने बड़े नहीं हो जाते ना, तब तक तुम्हारे डोर पे कोई नहीं आने वाला. इफ़ यू गो एंड बी लाइक ह्यूज,
जिससे एक थ्रेट बने, मतलब जिससे लॉस हो गवर्नमेंट को तुमने टैक्स ना देने पर, तो ही वो लोग आएंगे. सो आई विल सजेस्ट कि पहले शुरू करो यार, उसके बाद देख लिया जाएगा जो भी करना है. So before we speak about LinkedIn as a platform, which I want to really ask you about, I'd like to just know in short about what your future plans and goals are, if possible, regarding Elite NFT or anything. Yeah, so we are creating, so with Elite NFT तो है ही कि we want to create our own brand. Now what we do is we work for clients, we are working backstage and not on the front. We want to create our own collections and we want to do our own thing, जहाँ पे हम क्लाइंट पे ध्यान इतना देंगे, मतलब वी विल डू वर्क फॉर देम, बट वी वांट आवर ओन ब्रांड टू बी देयर एंड वी वांट आवर ओन थिंग एज ये. सो वी विल बी एस्टैब्लिशिंग दिस दैट्स द ये साल का टारगेट. आई डोंट नो 5 साल बाद मैं क्या करूँगा, बट ये साल का तो यही करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम क्रिएटिंग NFT super app where you can buy NFTs with UPI. So it is what we are creating, like that is huge, मतलब कहते हैं ना कि गेम चेंजिंग होगा. एज आई सेड, इंडिया में उतना मार्केट नहीं है, सो इट विल बी अ ग्लोबल प्रोडक्ट जिसमें तुम क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी खरीद सकते हो, UPI से खरीद सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी अ नॉन कस्टोडियल वॉलेट विच विल बी, अगर बहुत ये हो रहा है तो मेरे को बताना, ठीक है, कि समझ रहा नहीं है, बट इफ़ देयर विल बी अ नॉन कस्टोडियल वॉलेट जिसमें तुम्हें स्टैट्स मिलेंगे. तो आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम है कि NFT में ना, अगर तुमने NFTs खरीद ली, आज मेरे पास 200 NFTs है, मेरे को पता ही नहीं है मेरा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, क्या है इसकी वैल्यू आज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई हैव ज़ीरो नॉलेज. मेरे को इतना पता है, मैंने 5-4 लाख की NFTs खरीदी है. इसके ऊपर मेरे को कुछ नहीं पता कि इसमें मेरा प्रॉफिट, आज बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसका क्या मतलब ग्राफ क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वी आर क्रिएटिंग दैट ऐप कि जिसमें अगर तुमने NFTs खरीदी है तो तुमको सारा डेटा दिखेगा कि तुमने इतना पैसा डाला, इतना प्रॉफिट में, इतना लॉस में है. प्रोबेबली यू शुड, मतलब देयर आर वेज टू इंक्रीज योर NFT का इंक्रीज द रिटर्न्स दैट यू गेट ऑन NFTs. बाय दैट आई मीन कि स्टेक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेंड करना. सो वी विल सजेस्ट यू हाउ यू कैन इंक्रीज योर NFT वाला ये पूरा चीज़. सो दैट्स व्हाट वी आर क्रिएटिंग. So basically it's an investment support app for NFTs per se. Yeah, investment support plus making it easy for people to get into NFTs. And there is nothing of this sort in the global market right now. There might be. देखो, ऐसा बोलना कि मैं पहला हूँ, वो अश्नीर ग्रोवर सर का ठीक है, मतलब मेरे रिसर्च के हिसाब से तो ऐसा अलग अलग ऐप से जो एक एक चीज़, मैंने जो 4 चीज़ें बोली वो एक एक चीज़ करते हैं, बट ऐसा एक साथ कोई मेरे को तो नहीं पता, बट होगा, क्योंकि मैं कोई इतना जीनियस नहीं हूँ कि मेरे दिमाग में झुक करके आ गया और मैंने बना दिया, ऐसा नहीं है. पर अभी के लिए तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऐप विच इज़ एबल टू डू इट. Let's come to LinkedIn. This is a totally different topic, and this is just to probably gain a knowledge and gain some insight on how to use the platform, because I think that a lot of the people watching right now, as well as us, we can relate to that, because काफ़ी networking वगैरह में काफ़ी help करता होगा. Yes, LinkedIn पे आएगा तो धंधा बनेगा, ठीक है. So therefore a slogan. Yeah, so the thing is, see, we look at Instagram, we look at Facebook तो नहीं देखते हम, we look at Instagram etc etc to for glamour, and हमको लगता है कि Instagram से पैसा कमा सकते हैं. कमा सकते हैं, पर उसमें बहुत धंधा है, मतलब बहुत किचकिच है, कंटेंट बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुमको नंबर्स चाहिए. LinkedIn is totally different. LinkedIn is Facebook but for business people, ठीक है. There if you go there, पहला तुमको इतना ओवरवेलमिंग लगेगा कि तुम डिप्रेस हो जाओगे कि लोग मेरे उम्र के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं. Genuinely, वो तो that will be the thing, but you have to start somewhere, right? And once you start posting, once you start connecting with people, start talking, create your own network, that's when you will get opportunities. I am saying the dhanda that I have built today, we make 50 lakhs a year just ऐसे, ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ. तो if we are making 50 lakhs a year, 50 में से 49 lakhs 999 were from LinkedIn. Like LinkedIn as in इतना strong platform है तुम्हारे को clients मिलने के लिए, तुम्हारे को सब मिलने के लिए. It is the best thing that you could do. Just go there, personal branding. See,
Of course, personal branding happens on Instagram as well, but that personal branding is to the masses. ठीक है कि जो वो तुम्हारे पास धंधा ट्रू, इट्स टू दोज पीपल जो लोग बैठ के 4-4 घंटा रील देख रहे हैं, यहाँ पे वो है जिनके पास पैसा है, यहाँ पे वो है जिनके पास पैसा है, यहाँ पे वो है जिनके पास काम है. सो लुक एट द ऑडियंस, राइट? पीपल नेवर स्पेंड टाइम ऑन लिंक्डइन होल डे. इफ यू सी, कोई भी आदमी इंस्टाग्राम जो है सुबह 7 बजे खोल के 10 बजे तक मैं चला सकता हूँ. मैं लिंक्डइन चलाऊंगा ना इतना, मैं तो ऐसा डिप्रेस हो जाएगा. मेरे को चलाना ही नहीं है भाई. The point you said about looking at your own age का people doing what not, I think वो नहीं छोड़ भाई, मैं 14 साल का बच्चा देख रहा हूँ, वो $5,000 कमा रहा है महीने. मैं बोलूँ मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में. वैसे आपका प्रोफाइल देख के हमको भी ऐसा रियलिटी चेक काफी आ चुका है. So that's what, no, दूसरे को देख के लगता है. एंड that's the reason people can't use LinkedIn for a lot of time. ठीक है, this is the major reason. But there are people who will. So the peak time of LinkedIn is probably from 10 when you go to the office, that is like 10, 11, 9 to 11 के आसपास. उसके बाद 11 के बाद LinkedIn dead. कौन यूज़ करेगा LinkedIn काम करते वक्त, बराबर? So 11 to 4 वगैरह नहीं होता कोई इस पे, कोई कुत्ता भी नहीं आता उस. हाँ, so LinkedIn पर जो है मतलब इतना लोग नहीं है, तो सो एट 5 पीपल विल कम, देन टिल 7 देयर विल बी देयर, एंड देन उनका फैमिली टाइम शुरू फैमिली टाइम शुरू हो जाता है, राइट? सो लिंक्डइन जो है उसमें धंधा बनाने के लिए जाओ एट द एंड, बिकॉज द पीपल हु आर देयर हैव मनी, हैव काम. अगर पैसा भी नहीं है ना तो उनके पास काम है, उनसे काम मिलेगा. पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, काम मिलेगा. आज नहीं काम मिलेगा तो उनके पास फ्यूचर में काम आएगा, वो मिलेगा. So that's why LinkedIn is the key. You have to spend minimum 1 hour on LinkedIn. What I do, my schedule is, मैं शुरू जब भी करता हूँ ना दिन, मैं 10 से 10:30 बजे, 10 से 10:15 में एक पोस्ट लिखता हूँ, 10:15 से 10:30 बजे तक ऐसा स्क्रॉल करते करते सबको ए ग्रेट इंसाइट्स, मस्त लिखा है, क्या भारी, एक नंबर, ऐसा करके. Then I stop LinkedIn. I don't post that post. Okay, I just write it and keep it. I schedule it for 6. Now at 6 when it goes off, okay, then I start getting comments and all. So I start responding to them, and that's the same time I start connecting with people. So connecting as in कि मैं connection request भेज रहा हूँ, message भेज रहा हूँ कि भाई loved your profile, ये I do this, would love to connect, and मतलब देखते हैं कुछ हो सकता है अपने साथ आगे तो कर लेंगे, ठीक है. And the part of LinkedIn is it is very easy to get meetings, ठीक है. If you text someone on Instagram, ठीक है, कि hey I love your work, would love to get on a call with you and discuss XYZ. स्कैम ही लगता है. बहुत सस लगेगा. कोई नहीं करेगा, बहुत सस लगेगा. But the same thing if you do on LinkedIn saying hey XYZ, I am Yash, founder at ये. I guess we both are into the same domain as I read your posts, and would love to meet you over call or e-meet and discuss out the few synergies. तो ये ज़्यादा easy रहता है धंधा बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग ना नहीं कहते वहाँ पे, क्योंकि उनको क्या लगता है, ठीक है आज शायद ये मेरे को धंधा लाके नहीं दे रहा है, मैं इसको लाके दे रहा हूँ, कल वो मेरे को लाके देगा. There is this transaction happening because it is a professional space. हाँ, मतलब वहाँ पे लोग सिर्फ लेन देन के लिए ही जाते हैं. There is nobody helping there. Now on Instagram there is just what you are consuming. True. On LinkedIn, even when people comment on your post, there is a reason behind it. Probably they want to connect with you. Probably you haven't yet accepted their connection request. Probably they have sent you an email that you haven't checked yet. So they I have this guy, okay, I missed his DM. Okay, वो नीचे चले गया. Now that guy posted every single मेरे पोस्ट पे, he's commented every single day, ए ग्रेट इनसाइड. अब मेरे को उसका नाम बाय हार्ट हो गया, तो अभी ये मेरे पोस्ट पे हर रोज कमेंट कर रहा है, तो मैं सामने से जाऊंगा ना उससे बात करने, थैंक्स फॉर द सपोर्ट बड़ी, ऐसे करके. जब भी मैं उसके पोस्ट पे जाऊंगा मेरे को दिखेगा कि अरे उसने पहले से भेज के रखा है. सो वहाँ पे पूरा लेन देन का मामला है. देयर इज नो कंजम्पशन एज सच. इवन व्हेन यू आर रीडिंग, लाइक आई राइट वेरी फनी पोस्ट, आई राइट वेरी इंस्पायरिंग पोस्ट एज वेल. ठीक है कि मैं कुछ नहीं था, we've gone through a few. ठीक है, सो आई राइट दैट, ठीक है. But people are reading it for they know if they connect with me, probably they might get a job,
or probably I might help them in some of the projects that they are doing. So LinkedIn is that platform. For freelancers तो जन्नत है bro. Some time back, like जब ये बीच में ब्रेक लिया था, we were all talking about कि एक कमिटी में रह के तुम सीखते क्या, राइट? सो बेसिकली ना हम कमिटी में हैं एंड एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, आप एक्चुअली यू आर इन द बिगर ओशन एंड यू आर एक्चुअली रनिंग योर ओन स्टार्टअप. उधर का वर्क कल्चर आपने कैसा डेवलप किया या व्हाट डिड यू वांट वैसा हुआ, यू नो, लाइक द वर्क कल्चर बेसिकली? मेरा वर्क कल्चर बहुत सेक्सी है ब्रो, टू बी ऑनेस्ट. मेरा सी नाउ आई हैव पीपल हु आर 16 और 17 प्रोबेबली 17 से लेके ओल्डेस्ट इज 32 एंड दे आर ऑल वर्किंग अंडर यू. They are all working under me from 16 to 32. But I have created a kind of a work culture. Now I never, like, even if अभी जितना टाइम में आया तुम्हारे साथ बात किया, I guarantee you never got a feeling that कि मैं कुछ बड़ा है या फिर मैं कुछ यही फील आया रहेगा कि हाँ दोस्त है भाई, दोस्त जैसा बात कर रहा है, राइट? एंड आई मेड श्योर कि ये फीलिंग है ना, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हो. तो जो 32 ईयर वाला बंदा है वो अगर 16 साल वाले के साथ बात कर रहा है ना, so he should be friends with him and not his boss, right? We the मतलब ये कुछ भी हो, मतलब हायरार्की कुछ भी हो, ठीक है, all should be friends, okay, and they should talk. I have team of 10, मतलब freelancers पकड़ के 10, 8 in house, but I have connections with them where they can talk with me about anything. Be it their झगड़ा with their partner, be it कि भाई मेडिकल बिल्स नहीं आ रहे, ये वो मेरा EMI जा रहा है, उसमें मैं आई एम इन द फाइनेंशियल डेट, कुछ भी हो, ठीक है, any personal thing they can come directly and talk to me. That's the culture that I have built where people are free enough to do whatever they want. So in such a culture, don't you feel like, do sometimes you feel that, you know, they're not actually under me, they're actually with me? They are with me. There is nothing like under me. And if so, when it comes to push and shove, when you want to get things done, what will motivate them to listen to you? So अभी ना ये मैं बहुत प्रॉब्लम फेस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं दोस्त बन जाता हूँ उनसे. अब मैं उनको बोलूँगा काम कर, चल रे कर तो ना, ठीक है. But now there has to be a tone. Now what I do is I shift tones. Okay, when I am talking to like as a friend, I will be like हाँ बोल रहा हाँ ठीक है. But when I'm talking as a boss, now these guys know it because हाँ तू पहली बार आएगा ना. So I had this guy, okay. Now again Jatan knows me. You guys know Jatan, so I will give you an example of Jatan. So अब जतन ना मेरे साथ बहुत टाइम से काम कर रहा है, ओके, 8-10 महीने हो, 7-8 महीने के ऊपर हो गए. तो ना ही नोज कि मैं ना एक लाइन में फ्रेंड रहूँगा और दूसरी लाइन में अचानक से सीरियस हो जाऊँगा. मतलब लेट्स से आई एम सेइंग हाँ चल काय करते काय नाही करते, हाँ मला हे देऊन जाता. सो दिस इज द फर्स्ट, एक लाइन में चेंज हो गया. बट नाउ ही नोज कि फर्स्ट लाइन वॉज मजाक, सेकेंड लाइन. बट वेन समबडी न्यू जॉइन्स मी, व्हाट हैपेंस इज उसको समझ में नहीं आता कि ये मेरी मार भी रहा है और एट द एंड बोल रहा है कि नहीं अच्छा कर रहा है, ठीक है ऐसे. सो दैट आई फेस. But at the same time you have to make sure. So what I do is I never do the bad job, okay, I delegate the bad job to others, ठीक है. So I am not the, मतलब see what I do is, पहले तो अगर किसी को निकालना है, ठीक है, I will do it on my own, किसी और को नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं उससे दोस्ती कर लिया, ठीक है. तो he has that sense of, you know, with me कि भाई कोई बात नहीं, मतलब he can talk anything with me, right? So the thing is when you are that kind of a friend and तेरे को उसको निकालना है कि भाई you are not adding value to the organization, वो काफ़ी टफ हो जाता है. हाँ वो काफ़ी टफ हो जाता है. But I do it on my own क्योंकि वो रिश्ता ख़राब नहीं करना, right? Because ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसने तो दूसरे को निकालने बोल दिया, भाई मैं तेरे से आके बात करता था, तूने ऐसा किया. हाँ, सो दैट इज़ व्हाट आई नेवर डू. बट हाँ ऐसा वाला टास्क होता है ना कि किसी ने तेरे से काम पे टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है, वो मैं नहीं करता कि भाई देना क्या कर रहा है इतना टाइम, ये आई ट्राई टू डेलीगेट कि भाई तू है ना इसका मैनेजर, वो काम नहीं दिया इसने तो दे कर. क्योंकि अगर मैं हर रोज़ जाके उनसे है ना एंड मैं किसी को भी, सो आई शेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर तूने कल बोला उसको, ठीक है, और उसने आज भी नहीं दिया तो मैं तेरे को नहीं बोलूँगा कि आज भी जाके बोल. तो क्या होगा, वो बैड बन जाएगा उसकी नज़र में, तो दूसरे दिन मैं जाके बोलूँगा.
So that sharing has to happen between the managing level वाला people. So that's the culture में यही है बात कि you have to be very mature about things कि किधर क्या बोलना है, क्योंकि बच्चे से लेके 17 साल का बच्चा है, उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है रियल लाइफ का, ठीक है, से लेके 32 साल, मतलब उसने किधर तो जॉब करके बाद में मेरे साथ काम कर रहे हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि सबको एकदम एक जैसा रखे. या I'm sure a lot of us also got a lot of insights on in this last topic, because I mean, of course, we are not out in the real world, but we are trying to run something of our own here. Yeah, but again, this is a simulation, dude. Yeah. And I am giving you मतलब ऐसा मैं लिख के दे सकता हूँ, when you go on to a real life, ठीक है, what happens is yours is उल्टा, ठीक है. This is what I would have said him as well जब वो BTS लाइव हो गया अपना तभी. देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फर्स्ट ईयर वाला जो आ रहा है, ठीक है, उसको तुम सिखा रहे हो कि तू एम्प्लॉय कैसे करना है, ठीक. सेकंड वाले को दिखा रहे हो कि लेवल 1 मैनेजर कैसे बनना है, ठीक है. थर्ड एंड फोर्थ ईयर वालों को बता रहे हो कि बॉस कैसे बनना है और लेवल 3 मैनेजर कैसे बनना है. अभी क्या होने वाला है पता है क्या, कि प्लेसमेंट के बाद वो एम्प्लॉय हम एम्प्लॉय बने, तुम एम्प्लॉयमेंट पे जाओगे और उसका आदत रहेगा नहीं अब. हाँ. सो व्हाट हैपेंस इज तुमको आदत है डेलीगेट करने का, पर वहाँ पे डेलीगेट करने के लिए कोई है ही नहीं तुम्हारे पास. अभी हमको सुनना पड़ेगा. हाँ. एंड देन व्हाट हैपेंस इज प्रेशर आ जाता है तुम पे बहुत. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ योर ओन कॉलेज का ही बंदा प्रथमेश पराड़कर, ठीक है. ही इज वर्किंग विथ मी एज अ इंटर्न डेवलपर, ठीक है. नाउ प्रोबेबली ही इज अ सीनियर इन द कमिटी वेयर ही इज क्रिएटिव लीड और क्रिएटिव हेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. नाउ ही हैज अ लाइक ही हैज डेवलप्ड काइंड ऑफ ये थिंग प्रोबेबली कि डेलीगेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट. बट नाउ व्हेन आई एम सेइंग कि तेरे को पूरा वेबसाइट खुद बनाना है, जो 2 हफ्ते का काम है मैक्स, बंदे को 2.5 महीना लग गया. वाई? अभी मैं वो गलतियां अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसको सिखाने के लिए लिया था, इसको भी सीखना है, रियल लाइफ क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वही तुम्हारे साथ भी होगा. जब भी तुम रियल लाइफ में जाओगे ना, वो प्रेशर तुमसे हैंडल ही नहीं होगा. प्रेशर हैंडल नहीं होगा तो तुम काम छोड़ दोगे, एक जो उसने नहीं छोड़ा, या फिर तुम वो एक काम जो 2 या 3 हफ्ते का काम है उसको करने में लिए मंथ्स ले लोगे. एंड देन यू विल नीड एटलीस्ट अ ईयर टू यू नो बी कंफर्टेबल इन टू द पोजिशन एंड देन डू द वर्क. एंड दैट्स द रीज़न देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग वाला सैलरी एंड 1 साल बाद वाला सैलरी. क्योंकि 1 साल जो स्टार्ट में तुम कर रहे हो ना, यू आर नॉट गिविंग एनी वैल्यू टू द कंपनी. दैट्स द रीज़न देर आर ट्रेनिंग पीरियड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मेरे जॉब में वो नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट लेता हूँ, चला जा करते साथ में काम. पर जो MNCs है वो ये इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम पहले 3 से 5 महीने में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो. आई कांट नेवर डू जॉब प्रोबेबली, मतलब अगर मतलब ऐसा मुझे वेळ नको येऊ दे अशी, बट इफ आई हैड टू डू जॉब आई कांट. आई ट्राइड. आई हैड अ जॉब ऑफ सम 80 lakh per annum एज अ डिज़ाइनर इन अ US बेस्ड फर्म इन 2020, ठीक है. $80,000 मिल रहा था. 80 नहीं, Okay, a good sum. हाँ, मतलब एक गुड सम 50-1 लाख रुपए साल का एज अ डिज़ाइनर मिल रहा था, ठीक है. पूरा मतलब डिज़ाइन लीड था मैं उधर. तो मैंने ट्राई किया, मैंने 15 दिन में छोड़ दिया ब्रो, बिकॉज आई कांट टेक ऑर्डर्स. एंड द थिंग इज वर्क कल्चर ऐसा होगा ना जिस कंपनी में जहाँ पे तुम दोस्त जैसा मैनेजर से बिहेव कर पा रहे हो, प्रोबेबली आई कुड, ठीक है. पर जहाँ पे वर्क कल्चर इज प्रिटी कॉर्पोरेट, जहाँ पे तुम्हें डाटा जा रहा है, तुम्हें ये किया जा, सो कांट डू इट. एंड दैट्स द प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम. यू गाइज विल प्रिटी मच मतलब फेस दिस जब भी तुम रियल वर्ल्ड में जा रहे हो. प्रोबेबली यू आर इन 3rd ईयर राइट नाउ. सेकेंड ईयर. तो अभी बहुत टाइम है ब्रो. बट व्हेनेवर यू विल रीच दैट स्टेज इट विल बी दैट. इंटर्नशिप जब भी करोगे ना, प्रोबेबली यू विल स्टार्ट इंटर्नशिप, राइट. सो उसमें तुम फेस करोगे कि ऑर्डर्स लेना है, नहीं होता. लाइक तुमको ऐसा लगता है एक चमाड़ देगा तेरे को दैट. एंड आई गेट इट, या आई गेट इट कि वैसा होगा, बट यू कांट रियली मैनेज दैट. Anyway, ये तो हो गया एज इन लाइक क्या होने वाला है आगे एंड वेयर वी नीड टू वर्क ऑन दैट. बट फॉर द एंड ऑफ द एंटायर पॉडकास्ट, what would be the one business tip that you would give to Yeah, all this the is- viewers who will be watching this?
बिजनेस टिप विल बी कि मतलब लोग कहेंगे तू कर, हाँ फेल होगा, 3-4 बार गिरेगा, फिर हंसेंगे लोग, कोई बात नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा जब भी तू बैठा रहेगा, वो कमा रहे हैं रैट रेस में. आई फेस्ड इट एंड आई नो इट, दैट्स द बिजनेस टिप कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. You make it happen, bro. Like I created 300 videos which failed drastically. People were like, क्या कर रहे हैं, क्या है ऐसा सब, okay. But today what are they doing? They are unemployed at this point, right? And I am having my company. I'm not flaunting this. I am saying कि तुमने किसी को तो नाम रखा था, तुम क्या कर रहे हो अभी? That's where you should go. Fair enough. So this was the first episode of the Industry Insider by the NISP Council featuring Yash Gowde. Thank you, sir, for coming here. And how was your experience interviewing बढ़िया, the भाई. podcast? सही है, अभी बस 2 घंटे ट्रैवल करके घर जाना है. So. All the best for that. And we'll conclude our podcast here. Thank you so much for watching, and thank you for giving us your valuable time. We'll come back soon with the second episode of Industry Insider. Until then, thank you. Have a nice day. Have an amazing day. Thank you, Yash sir. Thank you to the entire team.